Good morning, students. In the last class, we discussed about the concept of depreciation. We discussed various things related to depreciation. We discussed about expected obsolescence. We discussed about unexpected obsolescence. We discussed what is depreciation reserve fund. So now, in today's class, we are going to start. We are going to discuss the concept of stock and flow. Usually in economics, we use various terms which are widely used, like investment, like capital, consumption, production, interest. All these terms are widely used in economics. Out of these terms, some are stock concepts, some are flow concepts. So, what are these? What do we mean by stock and what do we mean by flow? Let us discuss one by one. So, first of all, the concept of stock. See, I'll start with the definition, then I'll come to the explanation part. Stock is a quantity. Stock is a quantity which is measured at a particular point of time. ऐसा क्वांटिटी, ऐसा वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसको मेजर करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर डेट पे, उस टाइम पे देखते हैं कि वो चीज कितना है, उसका अमाउंट कितना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ रुपीज 500 नोट इन माई पॉकेट, दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट because I am measuring that particular thing, that particular money at this particular point of time. Another example, I may have rupees 20,000 in my bank account on this date, that is today. I may have 50,000 rupees in my account. So that is the stock concept. I may have rupees 1 lakh after 10 days in my account. That is also the stock concept. So stock is a value, stock is a variable, stock is a quantity which is measured at a particular point of time. Now, what is this flow? Stock is a quantity which is measured at a particular point of time. Next, I will come to the flow concept, and then we can clearly see the difference between these two. Now, what is this flow? Stock is measured at a particular point of time. Now, flow is a quantity which is measured over a specified period of time. जो एक period of time के ऊपर हम measure करते हैं, not a particular point of time. For example, I'll take one example. It will, it will be helpful to distinguish between these two. All of us have, tanks at our homes. हमारे घर पे जो है पानी का टैंक होता है, ओवरहेड टैंक जिसको बोलते हैं, जहाँ से पूरे घर में पानी का सप्लाई होता है. उस टैंक में मान लो जितना पानी है, ठीक है, इफ आई एम मेजरिंग दैट वाटर इन द ओवरहेड टैंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर अभी मैं देखूं कि उसमें कितना पानी है, 500 लीटर है या 400 लीटर है, दैट इज स्टॉक. नाउ सपोज देयर इज सम लीकेज इन द टैंक एंड वाटर इज फ्लोइंग आउट फ्रॉम द टैंक. अगर कुछ लीकेज है और पानी जो है उसमें से बाहर निकल रहा है, तो पानी जो निकल रहा है, जो लीकेज है, दैट इज फ्लो. फ्लो इज नॉट मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और फ्लो जो कॉन्सेप्ट होते हैं जितने भी, उनके पीछे जो है पर आवर, पर मिनट, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, इस तरह से कुछ ना कुछ टाइम का डायमेंशन लगता है. फॉर एग्जाम्पल, you may be getting rupees 50 per day as your pocket money. So ये pocket money क्या है? Flow concept है. But as your pocket money increases, suppose you have got pocket money for 5 days. So after 5 days, you will have some amount in your hand or in your savings. आप 4-5 दिन वो सेविंग्स मिलने के बाद, वो पॉकेट मनी मिलने के बाद हमारे पास कुछ अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है. वो जो अमाउंट है,
जो डिपॉजिट हुआ है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, वो क्या है, स्टॉक है। लेकिन जो पॉकेट मनी मिल रहा है पर डे, दैट इज द फ्लो वेरिएबल। अनदर एग्जांपल इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंक। सपोज आई टेक one beautiful example that will help you to understand between these two. Suppose there is a bank and I have an account in this bank. I am depositing some amount and at the same time I am withdrawing some amounts. Withdrawing some amounts. For example, if I am depositing rupees per thousand per month, you can say, and I am withdrawing rupees 500 per month. So when I am depositing money in the bank, so deposit कर रहा हूँ तो वो पर मंथ के हिसाब से कर रहा हूँ। तो ये जो डिपॉजिट कर रहा हूँ, जो अमाउंट मैं यहाँ डिपॉजिट कर रहा हूँ पर मंथ के हिसाब से, ये क्या चीज है, ये है फ्लो। आफ्टर डिपॉजिटिंग मनी फॉर सेवरल मंथ्स, आई मे हैव रुपीज 50,000 इन माई बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस टाइम पे बैंक में जो मेरा मनी है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मनी है इन द बैंक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम्स, सपोज आई एम मेजरिंग दिस, आई एम सीइंग दिस बैलेंस ऑन फॉर एग्जांपल 20th अप्रैल 2020। अगर मैंने 20 अप्रैल 2020 को मेरा बैलेंस देखा तो 50,000 अगर बैंक में है उस टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो क्या है, स्टॉक है। तो ये फ्लो था, ये स्टॉक है। अगेन इफ आई एम विड्रॉइंग द अमाउंट, सम अमाउंट पर मंथ या पर डे या पर ईयर, तो ये जो विड्रॉल है अगेन इट बिकम्स फ्लो। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा देखना चाहें कि डिस्टिंग्विश करना चाहें कि क्या चीज स्टॉक है, क्या फ्लो है, तो उसके लिए एक चीज हम कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि अगर वो चीज हम पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर कर रहे हैं वो उस टाइम फिक्स है। जैसे जो पानी का टैंक है उसमें पानी देखा, वो उस टाइम पे देखा मैंने, तब वो फिक्स था उतना पॉइंट, उतना अमाउंट जो उसका फिक्स था। लेकिन जैसे ही उसमें चेंज होना स्टार्ट होता है, अगर वो बढ़ भी रहा है, मान लो उसमें पानी आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, तो भी क्या है, वो फ्लो है। ठीक है, जब चेंज होता है उसमें, जहां चेंज की बात आती है, तब वो क्या बन जाता है, वो फ्लो बन जाता है। लेकिन जहां वो फिक्स होता है, जब हम उस पॉइंट पे देखते हैं, तब वो क्या होता है, वो स्टॉक होता है। ठीक है, सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स। अब जो वाटर टैंक का मैं एग्जांपल बता रहा था कि उसमें अगर पानी का सप्लाई आ रहा है तो चेंज हो रहा है ना, ऑलरेडी जो उसमें वाटर है दैट इज स्टॉक, अमाउंट ऑफ वाटर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जैसे उसमें नया पानी आ रहा है तो उसमें चेंज हो रहा है, तो वो जो नया पानी जो आ रहा है, एडिशन जो हो रहा है, वो फ्लो है। फ्लो के होने से स्टॉक बढ़ रहा है। अब स्टॉक को अगर लीकेज होने से पानी हम ले रहे हैं, लीकेज की वजह से, या जब घरों में जो सप्लाई आती है पानी की ऊपर से टैंक से, तो वो जब उसमें चेंज हो रहा है, वो कम हो रहा है ना, तो वो अगेन क्या बन जाता है, फ्लो। तो फ्लो इन्फ्लुएंसेस स्टॉक एंड स्टॉक इन्फ्लुएंसेस फ्लो, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन द सेम वे दिस एग्जांपल आल्सो वर्क्स। सो जो डिपॉजिट डाल रहे हैं वो पर टाइम डिमेंशन के हिसाब से डाल रहे हैं, तो वो फ्लो है। बैंक में अगर बैलेंस देखते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, वो क्या हो जाता है, स्टॉक हो जाता है। अगेन जब विड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी क्या बन जाता है, फ्लो। आई विल टेक मेनी एग्जांपल्स टू इलैबोरेट दिस कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा स्टॉक और वेरिएबल्स की। स्टॉक और फ्लो के एग्जांपल्स दूंगा। जैसे वेल्थ है, वेल्थ का मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास कितना उसका प्रॉपर्टी है, कितना वेल्थ है। तो प्रॉपर्टी या वेल्थ दैट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट बिकम्स वेल्थ। फ्लो में जैसे इनकम है,
इनकम जो है पर डे हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, पर ईयर हो सकता है। तो इसके साथ टाइम डायमेंशन लग गया, ये क्या बन गया, फ्लो बन गया। नेक्स्ट है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री का, एक स्टेट का, एक जगह का लेबर फोर्स कितना है, तो ये क्या हो गया, स्टोक हो गया। नेक्स्ट स्टोक का एग्जांपल है कैपिटल। कैपिटल जैसे हमने पढ़ा फिक्स्ड एसेट्स है, तो दे आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उस डेट पे एक प्रोड्यूसर के पास कितना कैपिटल है, तो वो क्या है, स्टॉक है। लेकिन अगर ये स्टॉक में एडिशन होता है, जैसे मैंने बोला ना, इन्वेस्टमेंट क्या है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज द चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को हमने एक और नाम दिया था, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो या इन्वेस्टमेंट को हमने नाम दिया था कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल यहाँ है, तो यहाँ कैपिटल जो फॉर्मेशन है, इट बिकम्स अ फ्लो। तो जब चेंज होता है तो वो क्या बन जाता है, फ्लो हो जाता है। तो कैपिटल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज अ स्टॉक, बट द चेंज इन कैपिटल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या बन जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन पर डे का भी हो सकता है, पर मंथ का भी हो सकता है, पर ईयर का भी हो सकता है। जैसे हमने देखा, इसको ईयर के हिसाब से मेजर करते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, दैट इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस द स्टॉक ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है। और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सपेंडिचर जो है, जो हम खर्चा करते हैं किसी भी चीज पे, हाउस होल्ड में जो खर्चा करते हैं, इंडिविजुअल जो खर्चा करते हैं, इट मे बी मेजर्ड एट ऑन द डेली बेसिस, मंथली बेसिस, ईयर के हिसाब से हम मेजर कर सकते हैं, पर डे, पर मंथ, पर ईयर। तो वो क्या बन जाता है, वो फ्लो बन जाता है। देन मेरे जो बैंक डिपॉजिट्स हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बैंक में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो क्या है, स्टॉक है। लेकिन अगर उसमें चेंज हो रहा है, या चेंज कैसे होगा, मान लो बैंक इंटरेस्ट भी देता है, तो इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलता है, हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में, इंटरेस्ट जो पर ईयर मिल सकता है, पर सेमी एनुअली मिल सकता है, 6 महीनों पे मिल सकता है, 1 महीने पे मिल सकता है। तो इंटरेस्ट जो है इसके साथ भी टाइम डायमेंशन जो है वो जुड़ा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है वाटर इन ओवरहेड टैंक। अगर वाटर जो है टैंक में मेजर कर रहे हैं एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो क्या है, स्टॉक है। लेकिन अगर चेंज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, या अगर नया उसमें पानी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब वन मोर ब्यूटीफुल एग्जांपल, जैसे डिस्टेंस है, तो दो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इट रिमेन्स द सेम, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इफ आई एम सीइंग द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, तो ये क्या है, स्टॉक है। लेकिन इफ अ कार इज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एट अ पर्टिकुलर स्पीड, लाइक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार जा रही है, तो उसका जो स्पीड है, वो स्पीड क्या होता है, वो फ्लो वेरिएबल है। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, एंड फ्लो इसका क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। सो दीज आर द फ्लो वेरिएबल्स। सो बेसिकली स्टॉक क्या है, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो जो है, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक के साथ जो है कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं लगता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। जब स्टॉक में चेंज होता है, तो वो क्या बन जाता है, वो फ्लो बन जाता है। एंड फ्लो इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर एट अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ, ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर मेजर करते हैं, स्टॉक को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में मेजर करते हैं। बट बोथ ऑफ देम इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। स्टॉक जो है फ्लो को अफेक्ट करता है, फ्लो जो है वो स्टॉक को अफेक्ट करता है। अंडरस्टूड? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स। ठीक है। नेक्स्ट है, इफ अ क्वेश्चन कम्स टू राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, तो उसके लिए डिफरेंस क्या बन जाएगा?
if you are asked to write the difference between stock and flow, then what will you write? फर्स्ट वन हो जाएगा डेफिनेशन, इसमें भी डेफिनेशन हो जाएगा। डेफिनेशन में क्या लिखना है? इट इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 2 है इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इसके साथ कोई टाइम का डायमेंशन नहीं लग सकता है, लेकिन ये जो है वो टाइम डायमेंशनल है। और तीसरे में जो है यू कैन राइट एग्जांपल्स। सो व्हेनेवर यू आर आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस यू कैन ट्रीट द एग्जांपल्स एज वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन दोस टू थिंग्स। सो इस तरह से आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में देयर आर सम क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट हैव स्टॉक कॉन्सेप्ट, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, ये ऐसी चीजें हैं जिनका कोई भी स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जब भी मेजर करेंगे दे आर मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो दे आर नॉट मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर ऑलवेज फ्लो वेरिएबल्स। दूसरा है देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स, देयर आर सम वेरिएबल्स, देयर आर सम क्वांटिटीज which have both stock concept as well as flow concept. For example, capital जो है, capital अगर if we are measuring capital at a point of time, it is a stock concept. But if we are measuring the capital over a period of time, that is capital formation. If we are seeing the change in capital, that is capital formation, then it becomes flow concept. So this is all about this stock and flow. There are some examples. You have to tell whether they are stock concept and flow concept. Number 1 is investment. Investment is obviously flow concept because it is measured over a period of time. Next is monetary expenditure. Expenditure obviously flow concept है. Next, a 100 rupee note stock concept है, एक point of time पे measure करते हैं. Family's consumption of sugar, एक family का sugar का consumption फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मंथली हो सकता है, डेली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। सर्विसेज ऑफ अ ट्यूटर, एक ट्यूटर की सर्विसेज जो है फ्लो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो डेली के हिसाब से उसकी सर्विस हो सकती है, मंथ के हिसाब से हो सकती है, ईयर के हिसाब से हो सकती है। देन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, मैंने जैसे बताया प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ऑल आर फ्लो वेरिएबल्स। देन मशीनरी ऑफ अ शुगर मिल, मशीनरी का मतलब कैपिटल, तो कैपिटल अगर बोल रहा है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, अगर कैपिटल फॉर्मेशन बोलता तो वो क्या हो जाता? फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाता। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक एंड कॉन्सेप्ट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम in two sector economy. Thank you for